Hello students, in this video we shall be discussing JEE Mains 24th Feb second shift questions of mathematics part. All questions are memory based which we can gather from our resources. I hope you will be able to understand the solutions properly. So here we begin. The first question today is find the value of n plus 1 C2 plus 2 times 2 C2 3 C2 till n C2. We have to find the value of this expression. Let us see what are the options available for this. These are the four options which are given to us. This question you know is from binomial theorem. A very important property of binomial coefficients is to be used here. All of us have read the property NCR plus NCR minus 1. You know this is n plus 1 CR. यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू है वो सेम रहती है, नीचे चेंज. यहाँ पर देखो कुछ उल्टा हो रहा है. 2C2 and this is 3C2. Right? So, ये value आपकी change हो रही है, नीचे constant. So, here we have to apply a trick. What that trick is? In place of this 2C2, I will write 3C3. Do you think it will make a difference? 2C2 is 1, 3C3 is also 1. So, what I am going to do, in this expression, I have n plus 1 C2 plus 2 times. First term I am going to replace with 3C3. Next is 3C2, next is 4C2, so on till NC2. Now, look at this expression NC3 plus NCR minus 1 or I say NCR plus NCR minus 1. तो ये दो जब आप ऐड करेंगे तो according to this formula, what is it going to be? n plus 1 CR. n 3 है तो n plus 1 means 4 और r minus 1 का कंपैरिजन करो तो r आपका 3 है. इसका मतलब when I add these two, I am going to get 2 times of 4C3. Next term is 4C2 till NC2. जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? I am going to get 5C2. Likewise, if I keep on moving, मेरा end result इसके साथ कंबाइन होकर के क्या बनेगा? I will get n plus 1 C3, right? n plus 1 C3. So, if I look at it, what I am going to get? मेरे पास जो यहाँ पर मुझे अब मिल जाएगा ultimately, that is going to be n plus 1 C2 plus 2 times of n plus 1 C3. So my expression now is n plus 1 C2 plus 2 times of n plus 1 C3. अब सबसे आसान तरीका जो आपके पास अवेलेबल है वो क्या है? आप यहाँ पर n को कोई वैल्यू दे दो. Let us take n as 2. तो ये बन जाएगा 3C2 plus 2 times 3C3. दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐड करके एक आंसर मिल जाएगा और वो सेम चीज आनी चाहिए यहां से आपके पास. एक तो ये तरीका. दूसरा n plus 1 C2 plus n plus 1 C3, n plus 2 C3 और फिर उसका एक आपके पास बच गया. See what I am saying? I break it. I do it like this. मैं इसको ब्रेक करके लिख दूं n plus 1 C2, n plus 1 C3, n plus 1 C3. अब यहां पर जब आप फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे NCR plus NCR minus 1 तो मुझे क्या मिलेगा? n plus 2 C3. तो मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है n plus 2 C3. I am getting here n plus 2 C3 and n plus 1 C3. अब इसको ओपन करके आप सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो सबसे आसान अभी मैंने आपको बताया, put the value of n and get your answers. And answer for this question is second option, that is n plus 1 2n plus 1 divided by 6. So you can rate this question as a good question. जहां पर सबसे पहला ही पॉइंट आपका ट्रिक था 2C2 को 3C3 से रिप्लेस करना था. The next question is A and B are subsets S of set X having 5 elements 1 2 3 4 5. Then find the probability that such that number of elements in A intersection B is 2. मतलब
x के सबसेट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल। ऑप्शंस को भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है हमारे पास। 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू अस आर लाइक दिस। अब सबसे पहले a और b सबसेट्स हैं इसके। टोटल सबसेट्स अगर 5 एलिमेंट सेट में हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 raised to power 5. दिस इज व्हाट वी नो। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज इज a और b ऐसे सबसेट्स होने चाहिए जिसमें 2 ही एलिमेंट कॉमन है, राइट। मैं एक एग्जांपल लेती हूं। लेट अस से a सेट मैंने ले लिया 1 2 3, दिस इज सबसेट ऑफ द गिवन सेट। b set I am taking as say 1 and 2, only 2 elements common, third element can't be common, that is the condition that is given to me। चलिए जी अब हम देखते हैं हम करेंगे क्या। सबसे पहली चीज हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स, जब हम टोटल आउटकम्स की बात करते हैं तो मुझे ये बताओ कि जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में पड़े हैं, फॉर ईच एलिमेंट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ईच एलिमेंट कैन गो ईदर टू ए और टू बी और टू बोथ, एंड फोर्थ इज इट गोज टू नन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हर एलिमेंट हैज गॉट 4 possibilities. How many elements are there? 5 elements are there. So in all total outcomes are going to be 4 raised to power 5. हर एलिमेंट के लिए 4 possibilities, 5 एलिमेंट, so 4 into 4 into 4 into 4, 5 times 4 raised to power 5. ये तो हो गए टोटल। अब हमने बात करनी है फेवरेबल केसेस की। जब हम फेवरेबल केसेस की बात करेंगे तो मुझे 2 एलिमेंट कॉमन चाहिए। वो 2 कोई से भी हो सकते हैं इन 5 में से। तो सबसे पहली चीज मैं इन 5 में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करूं। सिलेक्शन के लिए C जाएगा। आउट ऑफ 5 सेलेक्ट 2, 5C2। अब जो 2 एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर लिए उनमें चार के पास ऑप्शन कोई नहीं, उसको A में भी जाना पड़ेगा, B में भी जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 2 यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, दोनों में चला गया। अब बच गए 3 एलिमेंट। लेट अस से हमने 1 और 2 डाल दिए, बच गए 3 4 एंड 5। अब 3 4 और 5 के पास क्या क्या ऑप्शन बचे बच्चों? अब 3 4 5 के पास 3 ऑप्शंस बच गए। हर एक के लिए 3 ऑप्शंस। क्या वो A में जा सकता है, वो B में जा सकता है, या वो किसी में नहीं जा सकता। बट दोनों में जाने वाली ऑप्शन को हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि कॉमन एलिमेंट 2 ही चाहिए थे। वो 2 में ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। इसका मतलब अब बाकी 3 जो एलिमेंट बच गए, हर एक के पास फिर से 3 पॉसिबिलिटीज। सो इनटू 3 इनटू 3 इनटू 3। ये क्यों किया हमने इनटू? क्योंकि पांचों एलिमेंट को एडजस्ट करेंगे तो ही मेरा काम खत्म हो रहा है। सो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। And now to get the probability, what I want, favorable cases divide by total cases. तो जब हम favorable cases upon total cases की बात करेंगे तो मेरे पास जो probability आ जाएगी that will be 5C2 into 3 into 3 into 3 upon 4 raised to power 5. सही है? तो ये जो concept है again a good question, जहां पे आपका थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। चलिए जी आंसर एक बार देख लेते हैं इसका क्या बन रहा है हमारे पास। आंसर इज 135 upon 2 raised to power 9. Let us move to the third question. The third question here is from integration. आपको इंटीग्रेट करना है f of x को विद इन द लिमिट 0 to 2, लेकिन f of x तो दिया ही नहीं। इसका मतलब पहले f of x की कैलकुलेशन करनी है। दिया क्या है मुझे यहाँ पर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे। f dash x दिया है, f of x पर जाना है। All of you know if f dash x is given to me and I have to go for f of x, I have got only one option, do the integration। कर देते हैं इंटीग्रेशन। f dash x का इंटीग्रल f of x, f dash 2 minus x, you have to be very careful, f dash 2 minus x का इंटीग्रल will be f of 2 minus x and एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 minus x है, 2 minus x के डिफरेंशियल से डिवीजन, सो एक्चुअली एक नेगेटिव साइन आ गया और साथ में जाना है प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये c इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन दी है f of 0 is 1। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर x को 0 डालेंगे,
जब आप x को 0 डालोगे तो ये हुआ माइनस एफ ऑफ 2 प्लस c। तो मेरे पास यहां से जो निकल करके आया दैट इज एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2, दिस इज बिकमिंग c। अब ये दोनों वैल्यूज तो पता है मुझे, एफ ऑफ 0 1 है और एफ ऑफ 2 ई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मुझे मिल गया जिसको मैंने अब यूज करना है फर्दर। मेरे पास आ गया 1 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहीं से हम एक और चीज इस रिलेशन से देख लें, क्या बनेगा मुझे बोला यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, दिस इज, ये दो चीजें मुझे जरूरत पड़ने वाली हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा ताकि मैं इसे फर्दर यूज कर पाऊं। अब हम चलते हैं वो इंटीग्रल जो मुझे निकालना था। अब जो इंटीग्रल मुझे निकालना है उस पर जब हम जाएंगे तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। मेरे पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो आपको समझ में आ रही होगी, 0 से a वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। जब हम 0 से a वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो देखो जरा, 0 से 2 f of x dx, I write it as I, a minus x की प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 0 से 2 f of 2 minus x। अब जरा ध्यान से जो जो चीजें अवेलेबल हैं उनको देखते हैं। मुझे f of x plus f of 2 minus x c पता है और c की वैल्यू तो मुझे मिल चुकी है, तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मिला 2i is equal to 0 से 2 f of x plus f of 2 minus x। This is nothing but 1 plus e square which is a constant। अब ये मेरे पास एक कांस्टेंट ही है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लें, 2i is equal to 0 से 2 1 plus e square dx। And now I don't think so I need to do it। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे साथ में x आ जाएगा, लिमिट की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वहीं से आपको अपना आंसर मिलेगा। आंसर भी एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्या बन रहा है। आंसर ऑब्वियसली 1 plus e square हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ into x करके लिमिट्स डालेंगे तो this will become 2 times 1 plus e square which is 2i, so I is 1 plus e square। This was good question, not very difficult। चलिए जी, next is again from your कॉम्बिनेशन है किस किस का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसके साथ चल रही है इंटीग्रेशन। तो पहले हम इस देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व हो पाएगी। तो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक बार हम उसको जरा व्यू कर लेते हैं, दैट इज x dy by dx plus y plus b, प्लस नहीं है, दिस इज इक्वल टू, this is plus y, sorry, this is plus y is equal to bx power 4। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें समझ में आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो है नहीं, होमोजेनियस भी नहीं है, यहाँ y यहाँ x पावर 4 है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बची। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिस शुड बी dy by dx, तो मैं क्या करूं, थ्रू आउट डिवाइड विद x, dy by dx plus y by x is equal to bx cube। so यहां से मेरा p तो हुआ 1 by x, q हुआ bx cube। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power p dx which is e log mod x which is mod x, कोई कंडीशन ऐसा सच नहीं दी तो आई टेक इट एज x। अब आपको सॉल्यूशन भी पता है किस तरीके से निकाला जाता है। सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो हमें क्या चाहिए रहता है, सॉल्यूशन में हमारे पास आता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q। so y into x is equal to, b को बाहर ले लो, x पावर 4 का इंटीग्रल x पावर 5 by 5 प्लस c। अब यहाँ पर फिर से मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है c की वैल्यू, और c की वैल्यू निकालने के लिए
मुझे कुछ कंडीशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होती है। लेट अस सी क्या कंडीशन है मुझे यहाँ पर दे रखी है। कंडीशन जो दी है दैट इज इट इज पासिंग थ्रू 1 2। इसका मतलब जब x 1 है तो y 2, y2 x 1 b/5 प्लस c। मुझे c नहीं मिला यहाँ से, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये एक अननोन b बेचारा अभी पढ़ा था मेरे पास, तो अभी इसको एज अ रिलेशन हम लेके रखेंगे b और c। उसके बाद अब मुझे क्या कहा गया है? मुझे कहा गया f of y dy 1 to 2 is equal to 62/5। मतलब y का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दूं, f of x into dx कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम है, क्योंकि लिमिट 1 से 2 ही जा रही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से मैं y का एक्सप्रेशन देखती हूँ। y का एक्सप्रेशन हुआ b x raised to power 4/5 plus c by x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इंटीग्रल में डाल देते हैं। f of y I write or I write f of x, one and the same thing. So in place of y I can write it as f of x because this is function of x upon 5 plus c by x। ये f of x की वैल्यू इस इंटीग्रल में डालते हैं जो मुझे सॉल्व करना है, और इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। मैं ये रिलेशन अभी नहीं इरेज कर रही क्योंकि ये मुझे जरूरत पड़ने वाला है, सो आई एम कीपिंग इट लाइक दिस। लो जी, मुझे दिया है 1 to 2 b x raised to power 5 upon 5 plus c by x into dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये b/5 आपका कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये बन गया आपका इनटू सॉरी x से डिवाइड किया था, सो ये x पावर 5 की बजाय ये होगा आपका x पावर 3। x यहां से y into x was this, डिवीजन करोगे तो ये 5 की बजाय दिस इज गोइंग टू बी 3। ये 3 हुआ तो इसका मतलब है ये भी आपका 3 होगा। ये 3 है। अब 3 है तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? x raised to power 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c log mod x, और लिमिट अब आपको पुट करनी है 1 से लेकर के 2 तक। चलिए जी, अब हम इसमें लिमिट डाल देते हैं। जब हम इसमें अब लिमिट की सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखो वेयर आई एम रीचिंग। जब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करी, 2 डालोगे तो ये b/5 तो आपका कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा। 2 पावर 4 अपॉन 4 प्लस c log 2 माइनस b by this will become 20, इसको 1 डाला, log 0 log 1 0, तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। और ये वैल्यू मुझे दे रखी है 62/5। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन भी आपका b और c में आ गया। एक एक्सप्रेशन b और c में यहाँ पड़ा है, एक एक्सप्रेशन b और c में यहाँ आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, किसी भी एक को लेट अस से c की एलिमिनेशन कर दो यहाँ पर वैल्यू डाल करके इन टर्म्स ऑफ b, एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। एक बार हम आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, आई मीन चेक कर लेते हैं। मेरा आंसर जो बन रहा है यहाँ पर b का वो 10 है। मुझे b की वैल्यू चाहिए, इसलिए एलिमिनेशन c की करना ताकि डायरेक्टली आपको b की वैल्यू मिल पाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय 5x square less than is equal to y less than is equal to 2x square plus 9। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन आई कैन से। आपके पास 2 पैराबोलास, एक का वर्टेक्स ओरिजिन पर लेकिन दूसरे का ओरिजिन पर नहीं है, ये थोड़ा सा बस इसमें एक पॉइंट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट अस सी, पहला वाला जो पैराबोला उसको मैं लिख देती हूँ x square is equal to y/5, और दूसरा है y minus 9 is equal to 2x square, और I write x square is equal to 1/2 y minus 9। This is x square is equal to 9/5 and this is x square is equal to 1/2 y minus 9। दोनों का सबसे पहले आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन में स्केच becomes very very important, तो स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। Upward opening parabola with vertex at origin
लो जी ये बन गया। दूसरा भी आपका अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, लेकिन वर्टेक्स कहाँ है इसका? इसका वर्टेक्स जाएगा 0,9 पर। मतलब ये जो मेरा कर्व है, थोड़ा सा नीचे वाले को भी हम रीड्रॉ करें इसको लाइक दिस। दूसरे वाला जो जा रहा है वो इस तरीके से जाएगा, 0,9 से जाएगा। तो अगर मैं ये इंटरसेक्शन देखूं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मेरी इंटरसेक्शन हो रही है, और मेरा रिक्वायर्ड एरिया ऑब्वियसली ये वाला बन गया। अब अगर ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करूं और ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करूं। उसके लिए क्या करना है? इन दोनों की इंटरसेक्शन देखनी है। देख लेते हैं दोनों की इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर को यहाँ पर डाल देते हैं y/5, 1/2 y minus 9, 2y is equal to 5y. Let me rewrite it. 2y is equal to 5y minus 45. So 45 is equal to 3y. y is equal to, ये आपके पास एक्स स्क्वायर की रिप्लेसमेंट करी है तो y की वैल्यू आ रही है 9। y को 9 डालना है मुझे, और मुझे x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी 15। 45 डिवाइड बाय 3 दैट इज 15। जब मैं y को यहाँ 15 डालूं, 15 minus 9, 15 minus 9 is 6, 6/2 3। इसका मतलब I am getting x as plus minus root 3. So this is under root 3, this is minus under root 3. Now I can see ये जो मेरा एरिया है ये वाला और ये वाला दोनों सिमेट्रिक। So what will I do? I will calculate 2 times 0 से under root 3। इंटीग्रल क्या बनेगा? ये जो ऊपर वाला कर्व मेरा जा रहा है दैट इज दिस वन, और नीचे वाला इज दिस वन। सो आई हैव टू गेट वैल्यूज फ्रॉम दीज टू कर्व्स। ये मेरे पास लिमिट आ रही है x की, तो मुझे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में चाहिए वो क्या चाहिए? अब मुझे यहाँ पर y की वैल्यूज चाहिए, dy के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 5x स्क्वायर माइनस अपर वाला 5x स्क्वायर नहीं है, अपर वाला हमारा नीचे वाला जो कर्व है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस वन। सो y यहां से मिला 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5x स्क्वायर। एक और चीज हमने यहाँ पर जो नहीं डिस्कस की दैट इज ये जो कर्व है दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू y/5। मुझे प्लॉट चाहिए x स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू y/5। इट मींस इनसाइड एरिया ऑफ द पैराबोला। इनसाइड मींस ये वाला पार्ट। लेकिन दूसरे पैराबोला में क्या हो रहा है? दूसरे पैराबोला में मेरे को दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू y। इट मींस आई वांट आउटसाइड। आउटसाइड वाला जो है ये वाले पैराबोला का आउटसाइड इज दिस वन। इसीलिए जो मेरा कॉमन एरिया बनेगा वो ये मेरा शेडेड रीजन हो जाएगा। ये इंटीग्रल काफी आसान है सॉल्व करने के लिए, सो यू विल बी एबल टू डू इट। हम एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर बन रहा है 12/√3। चलिए जी, नाउ वी आर अप टू क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आप करते थे 10th क्लास के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। देखते हैं जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 432 km/h एट अ हाइट h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लेट अस से ये मेरी हाइट है, माय हाइट इज h meters फ्रॉम द ग्राउंड। ये मेरा ग्राउंड, ये हाइट मेरी h, यहाँ कहीं मेरा एरोप्लेन है, ये फ्लाई कर रहा है at the rate of at a velocity of 432 km/h. If its angle of elevation from a point on the ground is 60, after 20 seconds its angle of elevation from the same point, पहले हमने
एक पॉइंट से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, अब मेरा एरोप्लेन मूव करता जा रहा है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया है 30 डिग्री। तो लेट अस से ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट कह देते हैं, ये मूव हुआ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी है 60 डिग्री। पहले मेरा है 60 डिग्री, आफ्टर 20 सेकेंड इट इज बिकमिंग after 20 seconds its angle of elevation from the same point is 30 degree। अब मेरा एरोप्लेन मूव करके यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, लेट अस से पहले बी पॉइंट पर था, अभी क्यू पॉइंट पर आ गया है, और क्यू पॉइंट से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की सेम पॉइंट पे बात करी जा रही है तो ये एंगल अब आपका हो गया है 30 डिग्री। ठीक है जी, ये वाला एंगल है मेरा 30 डिग्री। मेरा एरोप्लेन यहां पर था, मूव करके यहां पर आ गया, ये मेरा पॉइंट हो गया है ए। मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है हाइट h। अब हाइट तो सेम रहने वाली है, जिस हाइट पर यहां मूव कर रहा था उसी हाइट पर अब ये यहां पर मूव कर रहा है, सो दिस इज अगेन h। ये हाइट ही मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। एक चीज मुझे सिर्फ यहां पे दे रखी है, जब ये a से लेटस से b पॉइंट पर जा रहा है, इसको हम b कह देते हैं, ठीक है जी। अब मुझे बताना है हाइट क्या है, और मेरा जो डिस्टेंस मूव हुआ वो लेट अस से ये डिस्टेंस को मैं x कह देती हूँ, ये डिस्टेंस को y कह देती हूँ। स्पीड इज 432 किलोमीटर्स पर आवर, 432 किलोमीटर्स पर आवर। मेरा ये डिस्टेंस BQ डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 20 सेकंड में। मेरा एरोप्लेन पहले यहाँ था, 20 सेकंड में मूव करके Q पे आ गया। इसका मतलब मेरा y जो ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस को मूव करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, मुझे 20 सेकंड्स का टाइम लगा है। यहाँ पर स्पीड मुझे दे रखी है 432 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है मुझे सेकंड्स में। तो मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, मैं स्पीड को कन्वर्ट कर दूं मीटर पर सेकंड में, और आपको मालूम है 432 किलोमीटर पर सेकंड को अगर मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास क्या फैक्टर है, मेरे पास जो फैक्टर है जिससे मुझे इसे मल्टीप्लाई करना रहता है, दैट इज 5/18। ये फिजिक्स में आप बहुत बार यूज करते हैं। 5/18 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपके पास आएगी, ये स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। मैं साथ साथ एक काम और करती हूँ, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं। इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 20 सेकंड्स तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। सो मुझे ये y की वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है और वो आ रही है मेरी 2400 मीटर्स। So ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हिच इज PQ व्हिच इज सेम एज y। लो जी, ये मेरा काम हो गया। मुझे चाहिए हाइट। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है मुझे फिगर के अंदर। सो एक है P, इसको भी नाम दे देते हैं, लेट अस से R, P QRA। QRA में अगर मैं अपने रेशियोज लगाऊं तो h/x + y is tan 30 which is 1/√3, और दूसरा जो बनेगा दैट विल बी h/x is equal to tan 60 that is √3। सो h की रिप्लेसमेंट करेंगे √3x से। यहाँ h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से h मिल रहा है √3x, यहाँ पर h को √3x डाल दो, y की वैल्यू 2400 आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, x में। और मुझे निकालना क्या था, h निकालना था। यहाँ से x निकालोगे, x की वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तो आपको h मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर देखते हैं, 1200√3 is the answer for the question. Next है question number 7. A curve y is equal to ax² plus bx plus c passing through the points 1, 2 has slope at origin which is equal to 1. Then ordered triplet, मुझे a b c तीनों चीजें निकालनी है। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है कि ये कर्व 1, 2 से पासिंग है,
पास करवा देते हैं। कब है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पास करवाओ जी 1 2 से, मतलब x को 1 डालना है और y को 2 डालना है। y 2 x 1 डालने का मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2। वन रिलेशन इन a b से आई एम गेटिंग एज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2। दूसरी चीज दी स्लोप ऑफ दिस एट ओरिजिन, इट मींस dy by dx फॉर दिस कर्व एट 0 0 इज 1, तो निकाल देते हैं dy by dx। स्लोप इज योर dy by dx व्हिच इज 2ax plus b। मुझे चाहिए किस पर भला, ओरिजिन पर। ओरिजिन का मतलब है 0 0 पर, 0 0 का मतलब ये हो गया 0 और ये दे रखा है 1, तो मुझे यहां से जो वैल्यू मिली वो मिली b is equal to 1। यहां डाल दो b1, अगर b को 1 डाल दें तो क्या मिल जाएगा, a plus c b1 मिल गया। अब बच्चों ऑप्शन पर चल के आंसर अपना देख लो। b1 आपका यहाँ पर b1 है, b यहाँ पर b1 है, b यहाँ पर b1 है। अब बात करनी है a और c की। a प्लस c आपका 1 बनना चाहिए, वो आपका इसी ऑप्शन में बन रहा है। 1 प्लस 0 1, यहाँ करोगे तो हाफ हो जा रहा है, यहाँ पे कर रहे हो तो हाफ हो जा रहा है, यहाँ कर रहे हो तो 2 हो जा रहा है। सो मेरा आंसर क्या बन गया, फर्स्ट वन इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास the value of tan 1 by 4 sin inverse under root 63 by 8। Again a very normal सा question, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें थोड़ी सी आपके पास कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो ज्यादा हो जा रहा है। देखते हैं कैसे। मैं क्या करती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ये sin इनवर्स अंडर रूट 63 by 8 इसको ले लिया मैंने थीटा, तो अंडर रूट 63 by 8 becomes sin थीटा, और जो एक्सप्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है वो क्या हो गया, इस पूरी चीज को थीटा लिया, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है tan थीटा बाय 4। मुझे चाहिए tan थीटा बाय 4। मेरे पास अभी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है sin थीटा की। sin थीटा से मैं cos थीटा और tan थीटा दो चीजों पर जा सकती हूँ। चलिए जी पहले तो ये चीज देख लेते हैं। अगर sin थीटा अंडर रूट 63 by 8 है, इसका मतलब ये है अंडर रूट 63, ये है 8, सो ये हो जाएगा 1। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट cos थीटा फ्रॉम हियर, मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 by 8। अब जरा मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मुझे चाहिए tan थीटा by 4, मेरे पास sin और cos की वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रैक करके हमें चीजों को देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर cos थीटा 1 by 8 tan थीटा by 4 पर जाना है। लो जी फिर हम क्या करते हैं, अगर मुझे tan थीटा by 4 पर जाना है तो मेरा फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा by 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा by 2। ये देखो जरा, ये बात समझ में आ रही है। 1 माइनस cos थीटा by 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा by 2 will be 2 sin square थीटा by 4 and this is 2 cos square theta by 4। 2 और 2 cancel, sin square theta by 4 upon cos square theta by 4 is tan square theta by 4 अंडर रूट से tan theta by 4। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है मेरे पास cos थीटा चाहिए cos थीटा by 2, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये रिलेशन तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, cos थीटा और cos थीटा by 2। तो यहाँ पर देखते हैं, cos थीटा by 2 निकालने के लिए क्या करूंगी, 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2 एंड इट्स अंडर रूट, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो cos थीटा बाय 2 की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस cos थीटा बाय 2 होल अंडर रूट से। डाल देते हैं जरा वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 by 8 डिवाइड बाय 2, एलसीएम ले लो, 9 by 8 डिवाइड बाय 2, 9 by 16, तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई 3 by 4। cos थीटा by 2 की वैल्यू 3 by 4 आ गई, ये 3 by 4 वैल्यू यहाँ भी डालेंगे, यहाँ डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 upon under root 7। Let us see the next question, that is question number 8। Value of integral, again question of integration। आप देख रहे हो इंटीग्रेशन से बहुत कुछ हमारे पास आया है। So next time जब आप
अपना मार्च के अटेम्प्ट पर जाएंगे तो फॉर्मूला एटलीस्ट इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे से आपने देख के जाना है, ताकि हम आज आके नाट के क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, ये हम देख रहे हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब देखिए हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है x square minus 2x minus 2 greatest integer and modulus, these two functions are very important. So आपको इन पर बहुत ध्यान देना है अपनी प्रिपरेशंस के अंदर। अब यहाँ पर वैल्यू 1 से 3 जा रही है x square minus 2x minus 2, so before directly we cannot obviously integrate it, so पहले हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम क्या करें, क्या मैं ध्यान से देखना, x square minus 2x minus 2, can I write it as x minus 1 whole square? देखो जरा, जब आप करेंगे x minus 1 whole square तो क्या मिलेगा, x square plus 1 minus 2x, मुझे चाहिए minus 2, so if I put here minus 3, देखो जरा, क्या मैंने अपनी एक्सप्रेशन में कोई चेंज किया? मेरा एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मैंने लिखने का तरीका चेंज कर दिया, x minus 1 whole square minus 3। अब इंटीग्रल सॉल्व करना है 1 से 3, greatest integer of x minus 1 whole square minus 3, and you know when I have x plus n or x minus n का greatest integer, if this point is an integer I can separate it, so I write it as 1 2 3 greatest integer of x minus 1 whole square minus 3 times 1 से 3 greatest integer dx, और यहाँ प्लस और माइनस 3 का greatest integer कर लो, माइनस 3 का greatest integer is again minus 3, so ये वाले पार्ट की इंटीग्रेशन तो हो जाएगी, यहाँ तो कोई इशू हमारे पास है ही नहीं। माइनस 3 greatest integer is minus 3, so minus 3x, और इंटीग्रल करके आपके पास minus 6 is going to be the answer from here. Now let us see this, x minus 1 whole square 1 2 3। अब इसके लिए जो हमें करना है, that is, let us see how we are going to solve it. For solution of this part, दो तरीके मेरे पास, हम इजी वाले मेथड से ही चलेंगे obviously, not from the difficult one। 1 2 3 greatest integer of x minus 1 whole square, मैं क्या करती हूँ, मैं x minus 1 को सब्स्टिट्यूट करती हूँ as t, so dx becomes dt, और लिमिट्स में क्या चेंज आएगा, when I take x as 1 t will become 0, when x will be taken as 3 t will become 2, so मेरा इंटीग्रल कैसे चेंज हुआ, 0 से 2 greatest integer of t square dx is dt। अब मेरा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंप्लीफाई, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन अभी भी एक चीज है जहां पर आप लोग गड़बड़ कर सकते हो, उस पॉइंट को हम जरा ध्यान से डिस्कस कर रहे हैं। इतनी डिटेल में डिस्कशन का पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब आप अगला अटेम्प्ट देने जाएं तो जो जो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हो रहे हैं उनमें आप गलतियां नहीं करेंगे। ये अब आप सॉरी, ये लिमिट हमारी 0 से गई थी, सो दिस इज 0 नॉट 1, this limit is 0. Now this function is t square and limit is of t. This is a very important point which you have to keep in mind. Here my t is going from 0 to 2, so t square will go from 0 to 4. t square की जो वेरिएशन है यहाँ पर, that is from 0 to 4, और आपको मालूम है जैसे जैसे t स्क्वायर 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और वैल्यू लेगा, 1 से 2 में कुछ और लेगा, 2 से 3 में कुछ और लेगा, सो नाउ आई हैव टू ब्रेक इट। ब्रेक करते हुए अगेन दो चीजें, जब t स्क्वायर 0 से 1 में है तो t स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 में होने पर जो मेरी वैल्यू बनेगी ऑब्वियसली वो 0 बनेगी, सो 0 0 to 1। जब t स्क्वायर 1 से 2 में जाएगा तो 1 बनेगा, लेकिन लिमिट t की जानी है, t स्क्वायर 1 से 2 में, लिमिट 1 से √2 में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी √2 to √3, और जब ये √2 से √3 में t जा रहा है, मतलब t स्क्वायर 2 से 3 में जा रहा है, तो ये हुआ 2। नेक्स्ट जाएगा √3 से √4 विच इज 2 3dt। इसकी इंटीग्रेशन में तो कोई पॉइंट है नहीं जो मुझे करने की जरूरत है। Do it, put the limits and get your answer. See what is the answer? Answer is the third option, -1 -√2 -√3, but don't forget -6 हमारा सेकेंड वाले पार्ट से आ रहा था, उसे भूल नहीं जाना है हमने, नहीं तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, which of the following conic has tangent this at this point? इस पॉइंट पर किस कोनिक को ये टेंजेंट है? थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया गया। जनरली पूछा जाता है इस किस मतलब एक पर्टिकुलर कोनिक दे दिया, उस पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट लिखने को बोला जाता है। यहाँ काम थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। हमें पता है हर एक कोनिक पर जो हमें स्लोप फॉर्म है उसमें टेंजेंट्स की इक्वेशन मालूम है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मुझे दिया है x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 2 आई राइट इट एज रूट 3y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 रूट 3 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस 2। सो ये मेरे पास जो फॉर्म बन गई दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू हुई माइनस 1 बाय रूट 3 और c की वैल्यू है 2। अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, आई हैव टू मूव फ्रॉम दी ऑप्शंस। अब हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर m की वैल्यू ये है ये c है तो किस कोनिक पर ये मेरा आंसर बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में मुझे मेरा कोनिक है x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स में हमें मालूम है मेरे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बस हमें वेरीफाई ही करना है कि अगर मैं m को माइनस 1 बाय रूट 3 ले रही हूँ तो इन वैल्यू से क्या c की वैल्यू 2 बनेगी। बस यही चीज है जो मुझे यहाँ पर वेरीफाई करनी है। तो देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3x प्लस माइनस a स्क्वायर है 9, m स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 3 और b स्क्वायर है 1। तो ये क्या बना 3 प्लस 1 अंडर रूट 4, c की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 कंपेयर हो गई। सो मेरा आंसर यहाँ पर समझ में आ गया हमें कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चैप्टर में से आता ही आता है, वेरी इजी। सिर्फ कुछ चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होता है। तो मुझे करना है नेगेशन ऑफ negation P conjunction P disjunction Q। तो सबसे पहले हमें मालूम है जब हम negation कर रहे हैं conjunction का, so that is पहले वाली जो स्टेटमेंट है उसका negation, this becomes disjunction and then its negation। so मेरे पास यहाँ से जो चीज निकल के आएगी that is going to be negation of negation P, conjunction becomes disjunction, negation of P disjunction Q। negation P is P का disjunction। अब आपको disjunction की negation करनी है। जब अब हमें disjunction की negation करनी है तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा negation P conjunction negation Q। अब यहाँ पर है हमारे पास disjunction, यहाँ पर है conjunction। मैं क्या करूं, I'll write it as, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, negation P disjunction negation Q। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, P और negation P का disjunction, so this becomes universal और universal के साथ conjunction इसका, conjunction is same as intersection। यूनिवर्सल के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करो तो वही सेट वापस आ जाता है। इसका मतलब मेरा आंसर होना चाहिए P disjunction negation Q। Let us see, second is the correct option। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 is equation of plane passing through 102 and line of intersection of these two planes। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन 3D में से आ नहीं सकता। हमें चाहिए एक प्लेन जो इन दो की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। मैं क्या करूं, मैं इजी वे आउट के लिए इन दोनों इक्वेशन को जो वेक्टर फॉर्म में दिया आई कन्वर्ट देम इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स x plus y plus z minus 1 and second is x minus 2y plus 2 is equal to 0। Any plane passing through intersection of two planes is P1 plus k times P2 is equal to 0। So P1 plus
k टाइम्स p2 इज इक्वल टू 0। और कहां से पास करवाना है इसको 102 से पास करवाना है, तो डाल देते हैं 102 minus 1 plus k, x is 1, y is 0। y की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर 0 plus 2 is equal to 0। So, यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये आपका 1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 plus 3k is equal to 0। So k की वैल्यू -2/3। Now put this value of k here, -2/3 to reach at your final answer। और आंसर मुझे दे रखे हैं किस फॉर्म में बना, वेक्टर फॉर्म में। यहाँ से मुझे क्वेश्चन मिलेगी कार्टेशियन फॉर्म में, उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना आंसर देख लेंगे, और मेरा फर्स्ट आंसर ही इस केस में करेक्ट है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। Question number 13 says A is a 3/3 square matrices and B is 3/3 skew symmetric matrices। X is a, यहाँ पर एक करेक्शन है बच्चों क्वेश्चन में, this is 3/3 symmetric matrices, this is symmetric matrices, B is skew symmetric matrices, A is symmetric matrices, और इक्वेशन a square b square minus b square a square x is equal to 0। इसके आपको बताने हैं कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। और हमें पता है सॉल्यूशंस निकालने के लिए आई कैन राइट दिस एज से p into x is equal to 0। अब अगर मुझे ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, सो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटीज है, ईदर यू हैव यूनिक सॉल्यूशन दैट इज 0 0 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सो किस पर डिपेंडेंट है, it is dependent upon modulus or sorry determinant of this matrices P। यहाँ पर मेरे पास जो P है that is a square b square minus b square a square। I want to find out its determinant। क्या क्या दे रखा है, A is a symmetric matrices, it means A transpose is A and B is a skew symmetric matrices, so B transpose is minus B। ये दो चीजें मुझे दी हैं, मुझे इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी है। डिटर्मिनेंट एज सच निकालना तो क्योंकि मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, मैं क्या करती हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज लेके देख लेती हूँ। इफ इट कम्स आउट टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। सो मुझे क्या करना है, इस p का ट्रांसपोज लेना है। जब आप p का ट्रांसपोज लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर का ट्रांसपोज, a माइनस b ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ लगेगा, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, सो दिस इज बी स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर का ट्रांसपोज बी स्क्वायर का ट्रांसपोज। अब दिस कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज का स्क्वायर ए ट्रांसपोज का स्क्वायर ए ट्रांसपोज स्क्वायर एंड बी ट्रांसपोज स्क्वायर। अब ये वैल्यूज मैं पुट कर लेती हूँ, मेरे पास जो वैल्यूज मुझे गिवन है उनका मैंने यूज करना है। कैसे यूज करना है देखते हैं, ये दो चीजें हमें दे रखी हैं, सो विल मेक यूज ऑफ दिस। b ट्रांसपोज स्क्वायर, b ट्रांसपोज इज माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, a ट्रांसपोज इज a स्क्वायर विल बी a स्क्वायर, सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो, we started from P matrices, P was a square b square minus b square a square, और ट्रांसपोज लेकर के उसके नेगेटिव पे पहुंच गए। It means this is minus p, p transpose is minus p। p कैसी हो गई, skew symmetric matrices किस ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर की है। अगर skew symmetric matrices ऑड ऑर्डर की हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0। होमोजेनियस इक्वेशंस बन रही हैं, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिसेस का 0, सो मेरे पास सॉल्यूशंस कैसे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट 0 f of 01 f dash 02 f1 belongs to the interval। f1 किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है वो मुझे निकालना है। अब अगर मुझे इंटरवल निकालना है तो पहले मुझे ऑब्वियसली क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा f of x, फिर उसमें 1 की वैल्यू डालेंगे और देखेंगे कि वो किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो क्या आएगा, f of x f डबल डैश x
माइनस f dash x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. I write it as f of x, f double dash x is equal to f dash x whole square. Now can I write it as f of x upon f dash x is equal to f dash x upon f double dash x. या मैं इसको अब ऐसे भी लिख सकती हूँ, f dash x upon f of x is equal to f double dash x upon f dash x. मुझे अभी पहुंचना कहाँ पर है? मुझे पहुंचना है f of x पर. मैं क्या करूं? ऊपर डिफरेंशियल पड़ा है, नीचे फंक्शन, ऊपर डिफरेंशियल नीचे फंक्शन, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट. If I put f of x as t, f dash x dx will become dt, dt by t log of f of x and here log of f dash x. So मेरे पास यहाँ से जो solution निकल करके आएगा वो क्या आएगा भला? That is going to be on integration, मुझे जो मिलेगा वो होगा log of mod of f of x is equal to log mod of f dash x plus c. अब ये c की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन पता है, f of 0 1 है और f dash 0 2 है. तो यहाँ से मेरे पास, यहाँ पर जब मैं x को 0 डालूं, f of 0 1 log 1 0, so this side is 0, this is log of 2 plus c. So c की वैल्यू हो गई minus log 2. अब अगर c minus log 2 है तो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूं minus log 2. c की रिप्लेसमेंट मुझे करनी है माइनस ऑफ log 2 से. तो मेरे पास बना log mod f of x is equal to log mod f dash x minus log 2. ठीक है जी. तो यहाँ से अगर मैं log को हटाने की बात करूंगी तो मेरे पास ये बन जाएगा f of x, ये log m minus log n f dash x by 2. अभी भी मैं पहुंची नहीं हूं जहां चाहिए था f of x पर पहुंचना. तो यहां से हमने लिया 2 is equal to f dash x upon f of x. इंटीग्रेट कर देते हैं फिर से. So this becomes 2x plus c is equal to log mod f of x. 2x plus c is equal to log mod f of x. फिर से अब हमारे पास x की वैल्यू 0, x को मैं 0 डालूं, ये 0 हो गया, ये भी 0, तो c की वैल्यू हो गई मेरे पास 0. इसका मतलब मेरे पास जो फाइनली फंक्शन आ रहा है वो क्या बन रहा है? वो मेरे पास बन गया f of x is equal to, I am getting the function as f of x log of f of x is equal to 2x. So f of x is e raised to power 2x. e raised to power 2x, f of 1 चाहिए, e square, e की वैल्यू 2.73 के आसपास में रहती है. तो अब आपको बताना है किस इंटरवल में लाई कर रहा है. So that is lying between 6 to 9. Next question है हमारा question number 15. Find a point on the curve which is at shortest distance from this given line. काफी आसान question है. ये आपका पैराबोला है. इस पैराबोला में आपके पास वर्टेक्स जो बन गया that is x square is equal to y minus 4, 0 4 पर वर्टेक्स ये ऐसे जा रहा है मेरा पैराबोला. मुझे इस पे पॉइंट ढूंढना है which is at the shortest distance from this line. उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या हम अप्लाई करते हैं? जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जरूरत रहती है तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो मेरा कॉन्सेप्ट कैसे जाता है? मैं ये लाइन है लेट अस से y is equal to 4x minus 1. मैं पॉइंट लोकेट करूंगी इस पर जो इसके पैरेलल हो और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हमें मालूम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस. तो मेरा काम क्या है? मुझे इस कर्व पर दैट इज y is equal to x square plus 4 पर एक पॉइंट लोकेट करना है जो इसके पैरेलल मुझे टेंजेंट दे दे. तो dy by dx निकाल लेते हैं. dy by dx आया 2x. ये किसके बराबर होना चाहिए? इस लाइन की स्लोप के बराबर. और इस लाइन की स्लोप कितनी है? 4. इसका मतलब x हुआ 2. अब अगर x 2 है तो पॉइंट आ गया 2.8. ये वाला पॉइंट मेरा हुआ 2.8. पॉइंट ही पूछा था. ओके, पॉइंट ही पूछा था. पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो फर्स्ट
फर्स्ट इज माय आंसर। अगर डिस्टेंस पूछा जाता तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस आप निकाल सकते थे, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट दैट यू नो हाउ टू गेट। आंसर हो गया हमारा 2 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको एक फंक्शन दिया f of x इंटरवल इन व्हिच f of x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीज होने का मतलब मेरा डेरिवेटिव हमेशा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। किस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव रह रहा है वो देखना है, और अगर हमें ये देखना है तो ऑब्वियसली मुझे सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉजिक कर देते हैं f dash x minus 55, this becomes 6x square minus 6x minus 120। ये है x लेस देन -5 पर, ये है -5 और 4 के बीच में। अगला देखते हैं, this will be 6x square minus 6x minus 36 when x is greater than equal to 4. Now I want derivative to be positive क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चाहिए। यहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस इंटरवल में तो मेरा आंसर लेस देन -5 वाली चीज तो मेरे लिए वर्कआउट हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन हमने रूल आउट कर दी। अब ये और ये मुझे देखने हैं किस इंटरवल में पॉजिटिव बन रहे हैं और किस इंटरवल में ये मेरे नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा, इसमें से अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन में से इफ आई टेक आउट 6, मेरे पास बचा x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। ये कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा, उसके लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो दिस इज 6x minus 5x plus 4, x minus 5x plus 4। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, क्रिटिक आपको आप लगाएंगे वेव कर्व मेथड। ये 5 है, ये -4। पॉजिटिव का मतलब हुआ यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। माइनस इंफिनिटी से -4 में मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव बन रहा है और 5 से बड़ी वैल्यू में भी बन रहा है, तो मुझे आंसर यहीं से मिल रहा है माइनस इंफिनिटी टू, अच्छा ठीक है, अभी बाकी भी चेक करना पड़ेगा। माइनस इंफिनिटी से -4, 5 टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये और ये ऑप्शन आपकी रूल आउट हो गई। अभी सिर्फ आपको चेक करना है कि ये माइनस इंफिनिटी से -4 तक जाएगा या फिर -5 से 4 में जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है यहां से हम निकालें कि कहां पर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाला काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से ये जो आपका सेकंड वाला फंक्शन है ये वाला, यहाँ से 6 कॉमन निकाल दूं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, दैट गिव्स मी 6 बाहर, x माइनस 3 और x प्लस 2, नहीं ये है मेरे पास, एक सेकेंड, माइनस 6, लेट मी राइट इट वंस अगेन, दिस इज माइनस 6। तो जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो x माइनस 3 और फिर बनेगा साथ में x प्लस 2। अब ये -3 प्लस 2, इसको भी आप एक बार देखेंगे कि मेरे पास ये वाली चीज मेरी वैलिड है जब x 4 से बड़ा हो रहा है, और ये है -3 का मतलब ये हो गया मेरा 3 और ये हुआ -2। इधर पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो मेरे पास 4 से बड़ी वैल्यूज चाहिए मुझे इस इंटरवल में। पहले वाले में मेरे पास जो फर्स्ट वाले में ऑप्शन बन रही थी वो 5 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू -4 बन रहा था, और यहाँ पर अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है माइनस, देखो -5 टू 4 और ये वैल्यू है 4 से बड़ी वाली। तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो वहां से हमने जो अपना आंसर मार्क करना है दैट इज फर्स्ट वाला ऑप्शन -5 टू -4 एंड 4 टू इंफिनिटी। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ABC are in AP, centroid of the triangle with given vertices is this and alpha beta roots of this equation then this। देखो यहाँ पर दो कंसेप्ट को इकट्ठा कर दिया गया, तीन को रादर, AP भी यूज हो गई, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी देख लिया गया और साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने यूज किया। तो पहले हम A और B निकालेंगे पहली दो कंडीशन से, फिर हम यहाँ पर डालेंगे अपना आंसर। आंसर चलो कोई बात नहीं, पहले ये आ गया, दैट डजंट मैटर। सो हमें अब करना क्या है, पहली चीज ABC AP में है तो 2B is equal to A plus C। ट्रायंगल की वर्टिसेस दे रखी है, सेंट्रोइड हमें मालूम है x1 plus x2 plus x3 by 3, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2A plus 2 by 3 and another one is C plus
10/3 और ये मुझे दिया है क्या बोला 10/3 एंड 7/3। यहां से मेरे पास देखो बहुत सारी चीजें हैं 2b = a + c एक रिलेशन है 2a + 2/3 की वैल्यू 10/3 आ गई c + 2b/3 की वैल्यू 7/3 आ गई है। सो यहां से मुझे एक मिला 2a + 2 = 10। फिर हमारे पास आया 2b + c = 7 और a + c = 2b है। तो मेरे पास यहां से अगर हम देखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a = 8 तो a की वैल्यू आ गई 4। अब यहां पर 2b की वैल्यू a + c डाल दें तो a + 2c 7 है a 4 है तो c की वैल्यू क्या आ गई c की वैल्यू हमारे पास बन रही है 3/2। अब c की वैल्यू भी आ गई है a की वैल्यू भी आ गई है तो ऑब्वियसली b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज मिल रही हैं और b की वैल्यू बन रही है आपकी 11/4। a की वैल्यू 4 है c की वैल्यू 3/2 है और b की वैल्यू 11/4। तो मेरी जो क्वाड्रेटिक हो गई वो क्या हो गई दैट इज 4x²। b is 11/4x plus 1 = 0। मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है वो α² + β² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अब यहां से हम देखते हैं अगर अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा ये दो वैल्यूज मुझे इस इक्वेशन में से मिल सकती हैं। देख लेते हैं जरा वो दो इक्वेशंस क्या क्या बन गई है मेरे पास। वो दो इक्वेशंस जो मेरे पास आएंगी एक है अल्फा प्लस बीटा विल बी -11/16 -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा इज c/a दैट इज 1/4। और अब मुझे क्या चाहिए मुझे ये वैल्यू चाहिए इन दो से इस रिलेशन पे पहुंचना है α² plus beta square minus alpha beta. This is alpha plus beta whole square minus 3 alpha beta. क्योंकि जब इसे खोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मिलेगा उसे कंपनसेट करने के लिए -2 अल्फा बीटा किया एक ये पड़ा है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पड़ी है अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पड़ी है पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। The question number 18 says the number of functions f from 1 to 20 एक सेट है on to function होना चाहिए अगले सेट में भी 1 से 20 तक आपके पास नंबर्स पड़े हैं such that f of k is a multiple of 3 where whenever k is a multiple of 4। k मतलब जो इनपुट जा रही है वो 4 का मल्टीपल जो आउटपुट आ रही है वो 3 का मल्टीपल इनपुट और आउटपुट इन दो सेट्स से आने वाली है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं f of k क्या क्या वैल्यूज ले सकता है और k क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। f of k is a multiple of 3 1 से 20 में मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 15 and 18 and 1 to 20 में इनपुट जो जा रही है वो इस सेट से जा रही है 1 से 20 नंबर 4 के मल्टीपल्स देखूं तो 4 8 12 and 16 20 राइट। फंक्शन ऑन टू यहां पर एक बात और ध्यान से समझ लीजिए जिस सेट से लेट अस से ये a है ये b है आई एम डिफाइनिंग द फंक्शंस फ्रॉम a to b ऑन टू फंक्शन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इट मींस ऑन टू में यू नो रेंज एंड कोडोमेन मस्ट बी सेम every element of this must be associated to any one element of a same number of elements है function on to then it has to be 1 1 तभी हम सारे के सारे एलिमेंट्स की कवरेज कर पाएंगे। लेट अस से ये मैंने कहा ये मेरा ए सेट है ये मेरा बी सेट है। अब पहले हम इन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं हमें बताना है कि यहाँ पर अगर ये नंबर पड़े हैं 12 16 and 20 यहाँ पर पड़े हैं 3 6 9 12 15 and 18 फंक्शन हैज टू बी 1 1। इसका मतलब इस एलिमेंट को देखूं अगर इनपुट ये डाल रही हूं तो आउटपुट इनमें से एनी वन ऑफ दिस कैन बी द आउटपुट। सो फॉर फर्स्ट एलिमेंट देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज अगले के लिए 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि सभी की एसोसिएशन होने पर ही फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। सो एक बात तो हो गई 6 into 5 into 4 into 3 into 2। Now how many elements were there in A set? 20 elements. 20 elements were there.
पांच एलिमेंट इसके 5 से तो एसोसिएट कर दिए इन दीज नंबर ऑफ वेज. 15 are left here, 15 are left here. और one function MPN, दोनों में 15 एलिमेंट. It means factorial 15 is the number of ways of associating the remaining elements of both the sets. So my answer in this case will be 6 factorial into 15 factorial. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है मेरे पास, the number of natural numbers which are less than 0. number of natural numbers less than 0. less than 0 तो हो ही नहीं सकता ना बेटा. natural number है तो 0 से छोटे नहीं हो सकते, which can be formed by using the digits 0, 1, 3, 7 and 9. यहाँ पर दो चीजें हैं. यहाँ पर as far as I remember, number of natural numbers less than 7,000. And one thing more should be mentioned, a repetition not allowed. A repetition not allowed. These two things has to be there. Then we are going to solve it. It could be repetition allowed or not allowed. हम दोनों में देख लेते हैं किस तरीके से हमें करना है. एक हम कर लेते हैं से repetition allowed और एक कर लेंगे not allowed. पहले चलो allowed वाला कर लेते हैं. not allowed वहीं पे मैं साथ साथ ही explain कर दूंगी how to do. हमें चाहिए natural number less than 7,000. So first thing that should come to your mind is I want single digit numbers, I want second 2 digit numbers, 3 digit numbers and 4 digit numbers. ये तो सारे के सारे जितने भी possible हैं with these digits वो आएंगे. यहाँ पर जाकर के कुछ restrictions because my number has to be less than 7,000. चलिए जी, 1 natural number है तो 4 possibilities single digit की 1, 3, 7 and 9. 4 possibilities are there. अब 2 digit number में first place I say this 10th place 0 नहीं जा सकता. ये 4 तरीके से फिल कर सकते हैं. और अगर मैं कहूँ repetition allowed, यहीं पे हम साथ साथ देखते जाते हैं. if I say repetition allowed है तो यहाँ के लिए भी 5 possibilities, लेकिन नहीं allowed तो इसके लिए भी 4. मैं repetition allowed के साथ चल रही हूँ. ये आ गया 5, so ways हो गए 20. अब अगर हम 3 डिजिट की बात करें तो फिर से यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज. repetition allowed तो 5 और 5. not allowed होगा तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज. यहाँ पर फिर से 4, क्योंकि यहाँ 4 थे 0 नहीं आ सकता. यहाँ जो भी एलिमेंट आ गया उससे बचे हुए 4 यहाँ पर, यहाँ 3 हो जाएगा. लेकिन अभी के लिए ये हो गए 100 एलिमेंट्स. अब यहाँ आकर के you have to be a little bit more cautious. क्या मेरे नंबर को 7,000 से छोटा होना है. अगर इसको 7,000 से छोटा रखना है मुझे, तो मेरे पास इस प्लेस पर क्या कुछ आ सकता है. मेरे पास इस प्लेस पर सिर्फ 1 और 3 आ सकता है. अगर मैं 7 भी ले लूं और उसके बाद मैं 1, 3 कुछ डाल दूं तो 7,000 को एक्सीड कर जाएगा. So this place can be filled only in 2 ways. Repetition allowed, so each in 5 ways. Not allowed होगा तो फिर यहाँ पर 4, 3 और 2 हो जाएंगे. ये बात हमें थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी. तो यहाँ पर हमारे पास बन गए 250. So total 374. Let us see अगर आंसर 374 ही है मेरे पास तो फिर repetition allowed के साथ था. not allowed भी मैंने explain कर दिया कि किस तरीके से होगा, तो आपको करना पड़ेगा. Okay, so question is less than 7,000, repetition allowed के साथ मुझे जाना है. अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20. और यहाँ से अब हमारे पास जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं दे आर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस. और आपको मालूम है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जनरली कंपैरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें बिना ऑप्शन के काम करने की उतनी आदत नहीं है. पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई तुक्का नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन. देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्या. यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर a प्लस अल्फा 1 है, b प्लस बीटा 2 है. ये दे रखा है वैल्यू बतानी f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x अपॉन x प्लस 1 बाय x. अब यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है a प्लस अल्फा. इट मींस समवेयर हियर इट हैज टू बी a. ये जो है आपकी टर्म ये a है, ये अल्फा नहीं है. दिस इज a f ऑफ x प्लस अल्फा f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू bx प्लस बीटा बाय x. हम क्या करेंगे, मैं इस एक्सप्रेशन में मुझे अल्फा f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू bx
प्लस बीटा बाय एक्स। मुझे इस एक्सप्रेशन में से ये वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहला स्टेप करूंगी x की रिप्लेसमेंट 1 बाय x से। जब x को 1 बाय x से रिप्लेस किया, ये हो गया 1 बाय x, दिस विल बिकम f ऑफ x, दिस विल बी b बाय x एंड दिस इज बीटा x। अब मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए जरा उस पर नजर मार लेते हैं। मुझे x प्लस 1 बाय x भी चाहिए, f ऑफ x प्लस 1 बाय f ऑफ x भी चाहिए। ऐड कर दूं इन दोनों को, देखो जरा ऐड करूं, इन दोनों में से a बाहर आ गया, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x। सिमिलरली यहां से आया अल्फा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x, this will become b into x plus 1 by x plus beta into x plus 1 by x। यहां से b plus beta into x plus 1 by x, यहां से आएगा a plus alpha into f of x plus f of 1 by x। अब जो आंसर चाहिए उस पे देखते हैं। मुझे जो आंसर चाहिए, this is this upon this, it means my answer should be b plus beta upon a plus alpha। ये वैल्यूज मुझे दे ही रखी हैं, so 2 by 1 my answer becomes 2। Next is question number 21, find the maximum value of k for which the maximum value of variance of 10 elements is 10, in which 9 values are 1 and 1 value is k। देखो अब यहाँ पर वेरिएंस की बात आ गई, रॉ डाटा है, रॉ डाटा में वेरिएंस का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, सिग्मा स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन xi बाय n होल स्क्वायर। मुझे एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k बतानी है, k क्या है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस for which maximum value of variance is 10, मतलब वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, इसका मतलब this is less than or equal to 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 10 दिए हैं, ये n भी 10 है। अब मुझे कहा गया इनमें से 9 वैल्यूज 1 है और एक वैल्यू k है, तो जब मैं स्क्वायरिंग करके ऐड करूं तो 9 प्लस k स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस k बाय 10 होल स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 10। अब इसको सिंपलीफाई करके मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, और दे दिया गया k क्या है, k इंटीजर है। तो लो जी, फिर हम यहाँ पर अगर इसको लिख दें, एलसीएम हो जाएगा मेरा 100, सो दिस बिकम्स 10 into 9 plus k square minus 9 plus k whole square less than is equal to 1000। तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 plus 10k square minus k square plus 81 plus 18k less than is equal to 1000। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई अगर करेंगे तो मेरे पास क्वाड्रेटिक आ रही है यहाँ से k में, वो क्वाड्रेटिक मेरी क्या बन रही है, एक बार हम जरा उसको देख लें। यहाँ से आया 10k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, सो दैट इज 19k, सॉरी दैट बिकम्स 9k स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 18k, और फिर आपके पास है यहाँ पर 90 माइनस 81, और इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस 1000। तो या हम ऐसे करने की बजाय एक काम करते हैं, यहाँ से आ रहा है माइनस 81 प्लस 90, तो प्लस 9 हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो आई राइट इट एज प्लस 9 लेस देन इज इक्वल टू 1000। 9 को बाहर निकाल दें तो बचा k स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर minus 2k plus 1 less than is equal to 1000। k minus 1 whole square is less than is equal to 1000 by 3। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरे k minus 1 की वैल्यू है, a square is less than 1000 by 9 है, सॉरी this is 1000 by 9 not 3, this is 9। तो k minus 1 क्या हुआ, less than is equal to आपका ये हो गया 10 रूट 10 by 3। तो क्या मैं यहाँ पर वेव कर्व लगा के लिख दूं कि ये वैल्यू लाई कर रही है माइनस 10 रूट 10 by 3, 10 रूट 10 by 3, आई एम सेइंग 10 रूट 10 by 3 एंड राइटिंग 10 रूट 3, दिस इज 10 रूट 10 by 3 से लेकर के 10 रूट 10 by 3 तक। तो k की वैल्यू जाएगी माइनस 10 रूट 10 by 3
+1 से लेकर के 10√10/3 +1 तक। आई वांट द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका तो कोई काम नहीं है। यहाँ से अगर आप देखते हो ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, मुझे इंटीजर चाहिए, सो मेरे पास यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू k की बनेगी 11। सो दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट xy फ्रॉम 5 0 इज थ्राइस एज डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम -5 0। लेट अस से इसको a कह देते हैं, इसको b पॉइंट कह देते हैं। तो मुझे क्या दिया है, a पॉइंट का डिस्टेंस 3 टाइम्स है b के डिस्टेंस से, इसका मतलब pa इज 3 टाइम्स kb। इसका मतलब क्या हुआ, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 3 टाइम्स √x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सॉल्व करके मुझे क्या बताना है, लोकस ऑफ p बताना है, वो कहा जा रहा है सर्कल है, और फिर उसका रेडियस निकालना। तो पहले इसे सिंपलीफाई करके सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं, उसमें से रेडियस निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 4r² की वैल्यू निकाल देंगे। लो जी, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करें तो x - 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस y स्क्वायर। लो जी, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल गिव मी 8x स्क्वायर, लाइकवाइज 9y स्क्वायर। इधर आपके पास आ रहा है 90x, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो बन जाएगा 100x, और 25 इंटू 9 माइनस 25, तो 25 इंटू 8, तो मेरे पास आ गया प्लस 25/8, सॉरी 25 इंटू 8 लिखना है मुझे, नॉट बाय 25 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। और एक चीज और यहाँ पर हमने करी है, दिस विल बी 8 नॉट 9, क्योंकि एक उधर पड़ा है, उससे जब आप इसको चेंज करेंगे। अब रेडियस निकालना है तो ऑब्वियसली मुझे इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 8 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 18/8x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना है यहाँ से रेडियस। रेडियस निकालने के लिए सर्कल की इक्वेशन ये मुझे मिल ही गई है। अब रेडियस मुझे जब निकालना है तो मेरे पास रेडियस क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस c। सो रेडियस के लिए मुझे जो चाहिए दैट इज √g²। g² क्या हो जाएगा, ये 2g है, ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 100/4, 100/16, सॉरी 100/16 हो गया आपका g। 100/16 का मतलब वो 25/4, 25/4 का स्क्वायर करोगे 625/16 माइनस 25, दिस इज योर रेडियस। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 25, ये 25, दिस इज 25 into 25, this is 25 into 16, so बन गया 25 into 9/16, this is your r, so that is 5 into 3/4। so मेरे पास r की वैल्यू है 15/4, r 15/4 आ गया तो 4r² आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। आंसर मेरा इसका बन रहा है 56.25। Next is your question number 23. Four numbers whose sum is 65/12 are in GP. Sum of their reciprocals is given. Product of first and three of them is 1. If third term is alpha, then find value of 2 alpha. Product of first and the product of first three of them, sorry, the product of first three of them is 1, then अल्फा की वैल्यू बतानी है, थर्ड टर्म अल्फा है, 2 अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर अगर मुझे नंबर्स का प्रोडक्ट दिया होता तो मैं नंबर फिर 4 अपने कैसे सेलेक्ट करती, a/r, a/r एंड दैट वे। प्रोडक्ट की चाहिए तो उसके हिसाब से लेते, अभी नहीं है मेरे पास प्रोडक्ट गिवन, तो मैं अपने नंबर सिंपली 4 नंबर लेने हैं। आई विल टेक a, ar, ar² एंड ar3। इक्वेशंस बना लेते हैं। सम a plus ar plus ar² plus ar3, this is 65/12। their reciprocals 1/a, 1/ar
1 by AR square 1 upon AR cube. This is 65 by 18. Product of first three, that is A into AR square. This is 1. चलिए जी पहले इतना कोई देखते हैं. A cube R cube 1 है, इसका मतलब A into R 1 है. यहाँ से A into 1 plus R square plus R cube 65 by 12 है. यहाँ से 1 by A कॉमन, 1 plus 1 by R 1 upon R square 1 upon R cube 65 by 18 है. एलसीएम ले लें. यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो बना R cube, ये हो गया R cube, ये हुआ R square, ये हुआ R, ये हुआ 1, 65 by 18. यहाँ से A को 1 by R लिख सकते हो. अगर मैं A को 1 by R डाल दूं तो ये बन गया R. ये पूरी वैल्यू क्या हुई? R क्यूब प्लस R स्क्वायर प्लस R प्लस 1. ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 65 अपॉन 12A. ये R क्यूब इज इक्वल टू 65 by 18. एक R हमारा और कैंसिल हो रहा है यहाँ पर. 12A और ये चलिए ठीक है, ये हमारा R कैंसिल होकर के ये R स्क्वायर आ गया. अब E इंटू R 1 है तो एक R बच जाएगा. यहाँ पर R की वैल्यू मिल जाएगी. R की वैल्यू मिल गई तो ऑब्वियसली A की वैल्यू मिल गई. R और A दोनों मिल गया तो मुझे थर्ड टर्म कही गई है अल्फा. A R स्क्वायर अल्फा. A की वैल्यू मिली, R की वैल्यू मिली तो अल्फा मिल जाएगा मुझे. मेरे पास A बन रहा है 2/3. A is 2/3 और R बन रहा है 3/2. सो यहाँ पर वैल्यूज डालिए, अल्फा आ जाएगा और फिर वहां से आप 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. और मेरा आंसर जो इस केस में बन रहा है दैट इज 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. There are 10 students S1, S2 till S10. Find the number of ways to form 3 groups G1, G2, G3 such that all groups has at least 1 member और ग्रुप G3 में ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर हो सकते हैं. तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं. हमारे को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना, G1, G2 एंड G3. इसमें कम से कम एक एलिमेंट और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? 1, 2 और 3. टोटल 10 एलिमेंट और बाकियों में कम से कम एक एलिमेंट आना जरूरी है. ये बात को ध्यान से समझ लेना. अब फर्स्ट अगर मैं ये केस लेके चलूं, G3 में एक एलिमेंट, टोटल 10 पड़े, 10 में से कोई सा भी एक यहाँ जा सकता है. सो हो गया 10C3. बाकी कितने एलिमेंट बचे? 9 एलिमेंट. 9 एलिमेंट को इन दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं. मतलब एक एलिमेंट के पास 2 पॉसिबिलिटीज, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, ऐसे ही 9 एलिमेंट्स के पास कितनी पॉसिबिलिटीज? 2⁹9. लेकिन एक गड़बड़ है. मुझे कहा गया इनमें कम से कम एक एलिमेंट आना ही चाहिए. तो मुझे वो 2 केसेस इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाएंगे जिसमें सारे एलिमेंट या तो G1 में चले गए या तो फिर G2 में चले गए. तो पहला जो मेरा केस है उसके लिए इतने वेज हो गए. अब सेकंड में जाएं तो क्या हो जाएगा? 10C2 सॉरी ये होगा 10C1. हमें एक ही एलिमेंट उठाना है तो ये 10C3 नहीं होगा, ये होगा 10C1. बाकी के 9 एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई. अब यहाँ पर G3 में 2 एलिमेंट डालने हैं, वो 2 उठाने का तरीका 10C2. 8 एलिमेंट इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं और ये 2 माइनस किया हमने जिसमें सारे के सारे एलिमेंट किसी एक ही ग्रुप में चले जा रहे थे, से G1 में जा रहे थे या G2 में जा रहे थे. अब अगली पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे? 10C3 2⁻7 - 2 और ये चीजें आपस में हो जाएंगी. कैलकुलेशन ऑब्वियसली यहाँ बड़ी है. तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आजकल मेंस में जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं. सो हम क्वेश्चंस को इन बिटवीन ना छोड़े. तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एंड रिजल्ट तक जाएं ताकि वहां जाकर के जो कैलकुलेशन मिस्टेक वाली चीज है वो आपको फेस ना करनी पड़े. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट्स यहाँ तक तो पहुंच गए, कैलकुलेशन में जाकर के कुछ ना कुछ गड़बड़, आंसर गलत और फिर क्वेश्चन करने का ही कोई लॉजिक नहीं. सो मेक श्योर कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास पूरी कैलकुलेशन के साथ अपने आंसर्स को निकालें. नेक्स्ट है 0.57 ऑन द सर्कल अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल इज ड्रॉन. इस सर्कल को इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया गया.
area of the triangle formed by this tangent normal with x-axis is lambda, then 24 lambda is. तो मेरा सबसे पहला काम है इस पॉइंट पर इस सर्कल को मैंने क्या लिखना है, टेंजेंट. टेंजेंट लिखने के लिए स्लोप चाहिए. पॉइंट मेरे पास है, स्लोप मिल जाए तो y = mx + c से टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी. तो पहला काम dy/dx निकालना. dy/dx निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट. लो जी, देखते हैं क्या आ जाएगा. 2 × x - 2, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. 2 × y - 3 और डेरिवेटिव हुआ dy/dx = 0. So 2 × x - 2 upon 2 × y - 3 minus dy/dx. अब 5 और 7 पॉइंट है. 5 - 2 3 और 7 - 3 4. So -3/4 is dy/dx. It means slope of tangent that I am getting is -3/4. अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी पड़ेगी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं और नॉर्मल भी साथ साथ ही लिख लेंगे. लो जी, टेंजेंट की इक्वेशन हूँ y minus y1 is equal to mx minus 5. ये है टेंजेंट. 4y minus 28 minus 3x plus 15. So 3x plus 4y minus 43 is equal to 0. ये है मेरी टेंजेंट की इक्वेशन. नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल मेरी स्लोप. So for normal I'll write y minus 7 is equal to 4/3 x minus 5. 3y minus 21 is 4x minus 20. So if I simplify it further, मेरे पास जो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, that is going to be, the equation of normal is going to be 4x minus 3y और ये जाकर के +1 is equal to 0. 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. अब ये टेंजेंट और नॉर्मल एक्स एक्सिस को जहां पर काटेंगे वो देखना है मुझे. लेट अस से ये एक आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन ये है, नॉर्मल की इक्वेशन ये है. ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पी पॉइंट हमने ये है मेरा 5 7, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ है. ये पॉइंट लेट अस से ए कह दो, ये पॉइंट बी कह दो. तो ये कहां पर कट कर रहा है, टेंजेंट कट करने के लिए y को 0 करा. अगर आपने y को 0 किया तो पॉइंट क्या बन गया आपका, -43/3 सॉरी 43/3 43/3 एंड 0. और ये जहां पर करेगा आप y को 0 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -1/4 एंड 0. अब आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए. आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है. अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप, हाफ बेस इनटू हाइट लग सकता है. यहाँ पर ये मेरी हाइट होगी जो कि 7 है. इस केस में मैं इसको से क्यों कह दूं, तो अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 7 है तो ये हाइट 7 है. और बेस निकालने के लिए ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये उल्टा होना चाहिए, -1/4, क्योंकि नेगेटिव वाला इधर पॉइंट ऑब्वियसली आपका जाएगा. राइट दिस एज -1/4 एंड वो वाला एज 43/3. सो बेस क्या हो जाएगा मेरा, बेस लेंथ इज 43/3 प्लस 1/4 और हाइट 7 है. अब ये हाइट और वो आ गया आपके पास, हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया निकलेगा. उसको 24 लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज 1225. We could get only 25 questions, verified questions. Questions तो बाकी भी थे but those were not verified कि आए भी हुए हैं या नहीं उसके अंदर, आपकी शिफ्ट के अंदर. So we have discussed 25 questions here. I hope all of you have understood all the concepts that we have used. And in between I have told you few points. You must take care of those points as you have to appear for next JEE mains also. Thank you students. Thank you very much.